رات کے وقت لے کر جایا کرتے تھے۔ حضرت اسما نے ایک دن کھانا بنایا اور سوچا میں باہر دیکھوں کہیں کفار مکہ کے لوگ تو نہیں کھڑے۔ جب حضرت اسما نے باہر دیکھا کفار مکہ کے لوگ اور ابو جہل بھی کھڑا تھا۔ ابو جہل نے جیسے حضرت اسما کو دیکھا آواز مار دی۔ حضرت اسما گھبرا گئی کیونکہ تقریباً 11-12 سال کی عمر میں۔ حضرت اسما سے پوچھتا ہے کہ بتا جس کا کلمہ آپ نے پڑھ رکھا ہے اور تیرا باپ کس جگہ پر چھپے ہوئے ہیں؟ حضرت اسما نے سوچنا شروع کر دیا۔ حضرت اسما نے سوچا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ سچ بول دیا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، میں نے اس کے ساتھ سچ بھی نہیں بولنا اور جھوٹ بھی نہیں بولنا۔ حضرت اسما تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس ظالم کو غصہ آ گیا۔ اس ظالم نے حضرت اسما کے منہ کے اوپر تھپڑ مار دیا۔ حضرت اسما نیچے گر گئی، سر میں چوٹ لگی، خون وغیرہ نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسما اٹھی، اپنا دوپٹہ پھاڑا، آدھے حصے کے اندر کھانا باندھا، آدھا حصہ سر کے اوپر لیا اور کھانا لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ جب پیارے نبی کھانا کھانے لگے تو پیارے نبی نے دیکھا کہ جیسا دوپٹہ سر کے اوپر لیا ہوا ہے ویسے دوپٹے کے اندر کھانا باندھا ہوا ہے۔ پیارے نبی حضرت ابو بکر صدیق کو بولتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، میں آپ کی کون سی وفا کا بدلہ دوں گا؟ آپ کے بچے بھی میرے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسما کے ساتھ وعدہ کیا کہ اسما بیٹا، جب جنت میں جنتی عورتوں کی سردار سیدنا فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کو چادریں تقسیم کر رہی ہوں گی، میں آپ کی سفارش کروں گا آپ کو 2 چادریں عنایت فرمائی جائیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بھائی صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے ہیں کہ ابو بکر صدیق آپ میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لیں، جو رات آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس غار کے اندر گزاری ہے، اس ایک رات کی نیکی مجھے دے دیں اور میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ اتنا مقام ہے اس غار سور کا اور جبل سور کا۔ اللہ اکبر۔ اب اپنے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں، یہ جو بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں یہ ہے عزیزیہ، جدھر حج والے لوگ ٹھہرتے ہیں۔ جدھر آپ ابھی ٹھہرے ہوئے ہیں ادھر حج والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ حاجی حج کے وقت اسی جگہ پر ہوتے ہیں کیونکہ مینا نزدیک ہے اور حاجی پیدل بھی چلے جاتے ہیں مینا کے خیموں کے اندر۔ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف عزیزیہ ہے اور سیدھے ہاتھ کی طرف مسجد الراجی۔ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف مسجد الراجی، ادھر کا ایک بینک ہے، اس گورنمنٹ کے بینک کے نام سے اس مسجد کا نام ہے مسجد الراجی۔ اور اب انشاءاللہ حاجی صاحب ہم جائیں گے میدان عرفات کے اندر۔ پوری دنیا کے اندر حاجی صاحب 2 مسجدیں ایسی ہیں کہ جو سال کے بعد صرف ایک دن کے لیے کھولی جاتی ہیں۔ مسجد نمرہ جو میدان عرفات کے اندر ہے، جس مسجد کے اندر حج کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، سال کے بعد ایک دن کے لیے کھولی جاتی ہے 9 ذی الحج والے دن۔ بڑی عید سے ایک دن پہلے اس مسجد کو کھولا جاتا ہے، اذان ہوتی ہے فجر کی، نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اذان ہوگی ظہر کی، نماز پڑھی جائے گی ظہر اثر اکٹھے، اذان 1 ہوگی، تکبیریں 2 پڑھی جائیں گی اور اس کے بعد پورے سال کے لیے نہ اس مسجد کے اندر اذان ہوگی اور نہ ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد ہے، اس کے ٹوٹل 6 مینار ہیں، 3 گنبد ہیں اور 65 دروازے ہیں۔ 3 سے 3.5 لاکھ لوگ ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد نمرہ جس مسجد کے اندر حج کا خطبہ پڑھا جاتا ہے،
इंशाल्लाह 2-4 मिनट के लिए आपकी गाड़ी उस जगह पर भी जरूर रोकेंगे और आपको नीचे उतारेंगे। और हाजी साहब इसी मैदान अरफात के अंदर है जबले रहमत पहाड़। जबल रहमत, रहमतों वाला पहाड़ है, बरकतों वाला पहाड़, जिस जगह पर हमारे माँ बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की दुआ कबूल हुई थी और साथ में मुलाकात। हाजी साहब आप लोग सब जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा आसमान पर रहते थे और एक छोटी सी भूल की वजह से अल्लाह ताला ने जमीन पर उतार दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका की सरजमीन पर उतारा गया और अम्मा हवा को सऊदी अरब के शहर जिद्दा में उतारा गया और 350 साल एक दूसरे को तलाश करते रहे। तलाश करते करते इस पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं जबले रहमत, और इस पहाड़ के इर्द गिर्द 40 साल तक एक दूसरे को तलाश करते रहे। एक दूसरे को आवाज मारते थे, आवाज सुनते थे, मगर एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, फिर अल्लाह ताला ने दुआ भी कबूल कर ली और अम्मा हवा के साथ मुलाकात भी हो गई। हाजी साहब इस पहाड़ के ऊपर जाना कोई फर्ज सुन्नत वाजिब नहीं है। दुआ मांगना प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हम जिनकी औलाद हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की, उनकी दुआ अल्लाह की जात पाक ने इसी जगह पर कबूल की थी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआ भी जरूर कबूल करेगा, आमीन इंशाअल्लाह। ऐसा भी इस पहाड़ के ऊपर एक सतून बना हुआ है पिलर नुमा। कुछ लोग इस पहाड़ के ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर अपना नाम लिखते हैं और उसको चूमते हैं। वो सिर्फ ऐसा निशानी के तौर पर है कि हर आदमी को पता चल जाए कि ये जबले रहमत पहाड़ है, रहमतों वाला। ऐसा मैं किसी को ऊपर जाने के लिए रोकता नहीं, जिसका दिल करता है कुछ जाए, जिसका दिल करता है ना जाए। दुआ जरूर मांगनी है क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्बा ऊंटनी पर बैठकर धूप में खड़े होकर हम लोगों के लिए दुआएं मांगी। सुन्नत भी है प्यारे आका की, और इसी जगह पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की दुआ भी कबूल हुई थी और साथ में मुलाकात हुई। और हाजी साहब इसी मैदान अरफात के अंदर क़यामत वाले दिन हर आदमी ने अपनी अपनी कब्र से उठकर इसी मैदान अरफात के अंदर इकट्ठे होना है। अल्लाहु अकबर। और हज का अलविदा खुतबा भी जबले रहमत पहाड़ पर ही दिया गया था, उसके नीचे। इंशाल्लाह उधर लोग 10-15 मिनट देते हैं, मैं आपको 20 मिनट का वक्त दूंगा इंशाल्लाह। जिसका दिल करता है ऊपर जाए या ना जाए, आपकी मर्जी है। और हाजी साहब जी, हाजी साहब जब कोई जियारत आएगी ना, अगर मैं छोड़ूंगा फिर आप लोगों ने बोलना है, उससे पहले नहीं। इंशाल्लाह जियारतें मैं करवा कर लेकर जाऊंगा, आपकी जियारत छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इस गाड़ी के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो पुराने हैं, जिन्होंने 5-7 दफा मेरे साथ जियारत की हुई है। इस गाड़ी के अंदर ऐसे लोग हैं, इंशाल्लाह मैं जियारत छोड़कर नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा था। और हाजी साहब हज किया जाता है 3 तरीकों के साथ। कुछ लोग हज करते हैं पैदल वाले रोड हैं 4, इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। और कुछ लोग बसों के अंदर सफर करते हैं हज के वक्त, बसों वाले रोड भी आपको दिखाएंगे। और कुछ लोग मेट्रो ट्रेन के अंदर सफर करते हैं। मेट्रो ट्रेन के 3 स्टेशन हैं। सबसे पहला मीना के अंदर है, दूसरा मैदान अरफात के अंदर और तीसरा मुजल्फा के अंदर। क्योंकि हाजी साहब हाजी हज के वक्त सबसे पहले आते हैं मीना के अंदर। 8 जिलहज वाले दिन हाजी आ जाते हैं मीना के खेमों के अंदर। और 9 जिलहज वाले दिन हर एक हाजी को बोला जाता है कि तमाम लोग मैदान अरफात के अंदर पहुंचे, इसलिए क्योंकि हज का सबसे बड़ा रुकन है वकूफ़े अराफात, कि अराफात के अंदर रुकना बहुत जरूरी है। अगर कोई आदमी मैदान अरफात की हदूद से 1 फीट भी बाहर होगा, उसका हज अदा नहीं होगा। ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह की जात पाक किसी वक्त भी हज की सादत नसीब फरमा सकती है। ऐसा भी इंशाल्लाह आप इधर जो भी दुआ मांगेंगे जायज इंशाल्लाह अल्लाह की जात पाक जरूर कबूल करेंगे। इसलिए क्योंकि हाजी साहब आप और मैं
सोच नहीं सकते इधर कितना रहमतों का नज़ूल है। ये मक्का शहर है हाजी साहब, ये प्यारे आका का पसंदीदा है और पैदाइशी शहर है। अब अपने हाजी साहब आपने दाएं बाएं दोनों तरफ देखना है, बोर्ड लगे हुए हैं निहाया हद्दे हरम के, हरम शरीफ की हदूद के बोर्ड लगे हुए हैं। अपने दाएं बाएं देखें, आ चुके हैं हाजी साहब, अपने दाएं बाएं देखें, अरबी में लिखा हुआ है निहाया हद्दे हरम। इस जगह से हरम शरीफ की हदूद खत्म हो जाती है। जितनी देर हम लोग सफर कर रहे थे हरम शरीफ की हदूद के अंदर ही कर रहे थे, अब हम लोग हरम शरीफ की हदूद से बाहर आ चुके हैं। और ये आपके सीधे हाथ की तरफ हाजी साहब ये जामिया उम्मुल कुरा है, ये मक्का की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जामिया उम्मुल कुरा। पूरी दुनिया से लोग इस जगह पर तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। जो लोग तालीम हासिल करते हैं मुफ्ती आलम फाजल बनकर निकलते हैं। आपके सीधे हाथ की तरफ जामिया उम्मुल कुरा। और हाजी साहब ये यूनिवर्सिटी हरम शरीफ की हदूद से बाहर है, इसलिए क्योंकि हरम शरीफ की हदूद के अंदर गैर मुस्लिम का दाखिल होना ममनू है, इसलिए ये हरम शरीफ की हदूद से बाहर है। अगर कोई आ भी जाए तो हरम शरीफ की हदूद से बाहर ही रहे। और हाजी साहब जब आप लोग अपने मुल्क से आ रहे थे तो कुछ लोगों ने दुआओं के लिए बोला था जी, आप लोग अपने लिए भी दुआएं मांगे और उन लोगों के लिए भी कि जिन लोगों ने दुआओं के लिए बोला था कि अल्लाह की ज़ात पाक अपने घर की और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की बादब हाजिरी बार बार नसीब फरमाए, आमीन। और हाजी साहब कोई आदमी ये भी ना सोचे कि मेरे पास पैसा था और मैं इस जगह पर आ गया। ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा इधर वो ही आता है जिसको अल्लाह और अल्लाह का महबूब बुलाता है। बेशक हाजी साहब आप लोगों ने अपने मुल्क के अंदर ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जिन लोगों के पास लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन उनके नसीब में अल्लाह के घर की जियारत और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जियारत नहीं है। और हाजी साहब आप लोगों ने ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जिसका कोई कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, वो किसी के पास मजदूरी करता है, बेशक, और सिर्फ हाजी साहब एक वक्त का खाना होता है, दूसरे वक्त की मालूमात नहीं होती कि कब खाना आएगा, कब खाएंगे। और उन लोगों को भी अल्लाह की ज़ात पाक अपने घर की और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जियारत नसीब फरमाए, आमीन। भाई साहब आप इंशाअल्लाह जो दुआ मांगेंगे जैज़ इंशाअल्लाह वो आपकी दुआ ज़ाया नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए क्योंकि हाजी साहब ये मक्का शहर है, ये रहमतें बरस रही हैं इस शहर के अंदर, और आप जो भी दुआ मांगे इंशाअल्लाह, क्योंकि जब आप आ रहे थे तो दुआओं के लिए इसलिए बोला गया था कि आप अल्लाह के घर जा रहे हैं, और हर एक आदमी इस नियत से बोलता है कि क्योंकि ये उस घर में जा रहा है जिधर कोई दुआ ज़ाया नहीं होती, इसलिए आप लोगों को दुआओं के लिए बोला जाता है। और अब इंशाअल्लाह हाजी साहब मैदान अरफात के अंदर थोड़ी देर तक हम दाखिल होने वाले हैं। आपने अपने सीधे हाथ की तरफ देखना है, पीले रंग का येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड के ऊपर अरबी में लिखा हुआ है बताया अरफात, और इंग्लिश में अरफात स्टार्ट हेयर आपके सीधे हाथ की तरफ आ चुका है। इस जगह से मैदान अरफात की हदूद शुरू हो जाती है, ये आपके सीधे हाथ की तरफ। जी जी, बाएं जानिब भी आपके सीधे हाथ की तरफ जैसे ये बोर्ड हम क्रॉस करेंगे तो हम मैदान अरफात की हदूद के अंदर पहुंच जाएंगे। और ये आपके सीधे हाथ की तरफ ये सब मैदान अरफात की हदूद है, और मीना और मुजल्फा पीछे रह चुका है, क्योंकि हम आ रहे हैं उल्टी साइड से। ज़ियारात की गाड़ियाँ बिल्कुल इसी रोड से आती हैं, और जो लोग हज के वक्त आते हैं वो सबसे पहले आते हैं मीना के अंदर, मीना से मैदान अरफात के अंदर आ जाते हैं, फिर पूरा दिन गुजारते हैं, ज़ोहर असर की नमाज भी अदा करते हैं, और उसके बाद सिर्फ दुआएं पढ़ी जाती हैं। जितनी देर तक दो बड़े काम करने
होता है दूसरे नंबर पर कुर्बानी के लिए। अब अपने सीधे हाथ की तरफ देखिए हाजी साहब, व्हाइट कलर की आपको छतड़ियाँ नजर आएंगी, व्हाइट कलर की बिल्डिंग, ये आपके सीधे हाथ की तरफ, ये मेट्रो ट्रेन का स्टेशन है जी। आपके सीधे हाथ की तरफ। ये है मैदान अरफात के अंदर। जैसे इंशाल्लाह मुजफ्फा जाएंगे आपको उधर भी दिखाएंगे, फिर जैसे मीना के अंदर जाएंगे उधर भी मेट्रो ट्रेन का स्टेशन है, आपको वो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। आप अपने दाएं बाएं देखिए हाजी साहब, ये नीम के पेड़ लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे जी। ये मैदान अरफात के अंदर भी लगे हुए हैं और मैदान अरफात के बाहर भी। ये पाकिस्तान का एक जनरल गुजरा है, जनरल जियाउल हक, शायद आपने नाम सुना हो। सन 1985 में 10 लाख दरख्त तोहफे के तौर पर दिए थे। मैदान अरफात के अंदर भी हैं और मैदान अरफात के बाहर भी। और हाजी साहब उनके नीचे जो मिट्टी डाली गई है वो मिट्टी भी पाकिस्तान से आई है। और हाजी साहब ये ना सोचें कि इसका कद छोटा है, कद इसलिए छोटा है कि जितनी मिट्टी डाली गई है उतना कद हो चुका है। अब इसके नीचे है पथरीली जमीन, इसलिए कद बड़ा नहीं हुआ। हाजी साहब बेशक इसका कद छोटा है, शायद मेरी बस के अंदर ऐसे लोग सवार हों कि जिसने हज अदा किया हो, अगर नहीं भी किया तो अल्लाह की जात पाक अल्लाह आपके नसीब में हज की सादत भी आमीन फरमाए। आमीन। भाई साहब हज के वक्त बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा धूप होती है, उस वक्त इन दरख्तों की कदर और कीमत का पता चलता है। हर एक आदमी एक दूसरे का साया तलाश करता है, उस वक्त इसकी कदर और कीमत का पता चलता है। माशाल्लाह अल्लाह की जात पाक ने आपको उम्रे की बरकतें लुटाई हैं, आपने उम्रे की बरकतें देखी हैं। अल्लाह की जात पाक हज की बरकतें भी आपके नसीब में फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह हाजी साहब आप इधर दुआ मांग कर जाएं कि अल्लाह हज के ऊपर बुलाए हमको भी, और जितने भी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान तड़प रहे हैं अल्लाह के घर की जियारत करने के लिए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जियारत के लिए, दुआ फरमाएं कि अल्लाह की ज़ात पाक बार बार हर एक मुसलमान को इधर आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह साहब जो दुआ मांगेंगे किसी की दुआ जाया नहीं जाने वाली। अब मीना और मुजफ्फा पीछे रह चुका है, जैसे आपकी गाड़ी जा रही है 9 ज़िलहज वाले दिन हाजी ऐसे ही आते हैं। और एक बात जानना जरूरी है, अपने उल्टे हाथ की तरफ देखें, मस्जिद निमरा का कुछ हिस्सा मैदान अरफात की हदूद से बाहर है। उल्टे हाथ की तरफ शुरू वाले 3 गुंबद छोटे छोटे और 2 मीनार, ये मैदान अरफात की हदूद से बाहर है। मस्जिद निमरा का कुछ हिस्सा मैदान अरफात की हदूद से बाहर है, उल्टे हाथ की तरफ। ये बनता है गेट नंबर 1। गेट नंबर 1 से आगे वाला जितना भी हिस्सा है वो मैदान अरफात की हदूद से बाहर है। हज के वक्त पुलिस वाले खड़े होते हैं, किसी को अंदर नहीं जाने देते। अगर कोई भूलकर चले भी जाए तो हज साहब उसका हज अदा नहीं होगा। और ये आपके सीधे हाथ की तरफ ये सब मैदान अरफात की हदूद है। क़यामत वाले दिन हर आदमी ने अपनी अपनी कब्र से उठकर इसी मैदान अरफात के अंदर इकट्ठे होना। हशर का मैदान भी मैदान अरफात के अंदर ही लगाया जाएगा। और अब पीले रंग के येलो कलर के आपने बोर्ड देखने हैं उल्टे हाथ की तरफ, और गेट नंबर 1 भी आएगा। अपने उल्टे हाथ की तरफ देखें हाजी साहब, ये पीले रंग के बोर्ड आ चुके हैं और गेट नंबर 1 भी है। व्हाइट कलर का गेट नंबर 1 जी लिखा है। इससे आगे वाला जितना भी हिस्सा है वो मैदान अरफात की हदूद से बाहर है। देखें उल्टे हाथ की तरफ हाजी साहब, और ये उल्टे हाथ की तरफ मस्जिद निमरा भी आ चुकी है। जी उल्टे हाथ की तरफ मस्जिद निमरा। और हाजी साहब ये मैदान अरफात वाली जगह है। जब आप लोग नीचे उतरेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने पाँव नीचे लगाना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह हमको भी हज की सादत नसीब फरमा और इसी जगह पर हज का खुतबा सुनने की तौफीक अता फरमा। आमीन। और हाजी साहब इधर गाड़ी रोक रहे हैं,
جن لوگوں کا وضو ہے وہ 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مسجد میں جایا کرتے تھے تو 2 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے۔ اگر تحیت نہ کہنا ہے تو 2 رکعت نفل ادا کر سکتے ہیں، نیت جاننے والی اللہ کی ذات ہے۔